Good morning, students. Today I will discuss about MySQL function. This is our sixth chapter. In MySQL function, you will come to know the introduction and the text functions, numeric functions, date and time function. Okay. So first of all, you need to know what is a function. A function is a special type of a predefined command set that performs some operations and returns a single value. Functions operate on 0, 1, 2 or more values that are provided to them. The value that are provided to functions are called the parameters, or we can say arguments, right? So very first let's discuss the text or string functions. The string functions of MySQL can manipulate the text string in many ways. Some functions can be used. String functions are being discussed right now. So that's first function is char function. This function returns the character for each integer passed. This is the syntax: value 1, value 2. Okay, it returns a string made up of ASCII, American Standard Code for Information Interchange, representation of the decimal value list, right? You can see one example. Write a query to create a string from the ASCII values 70, 65, 67 and 69. So you will find the character according to the given integer values, right? You know कि 65 की वैल्यू a होती है, कैपिटल A, 66 की B, 67 की C, okay, and so on. So you can see 70, 65, 67, 69, it will create a FACE. This will be the result. You can see another function that is also an example of char function. You will find the according character. Next is concat function. You know this function concatenate two string, दो string को आपस में combine करता है, right? So you can see one example. This is from the table. So student name is table name is the student. Student table have some values or some records. So you can write the command like this: select concat name comma aggregate as name marks. तो जो भी नई वैल्यू आएगी उसका एक नया कॉलम बन के आ जाएगा, जिसका नाम होगा नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर एज इक्वल टू 14 और एज इक्वल टू 16. सो यू कैन सी अकॉर्डिंग टू दिस ये दोनों वैल्यू आपस में कंबाइन हो गई हैं. वी कैन ऑल्सो पास our value our own self. You can see another example. Select concat, then concat ename comma is a job. तो पहले क्या होगा, from emp where empno equal to, you can give any condition. Okay, so ename से आ गया जतिन, is a उसके साथ concat हो गया, उसके बाद job की जगह clerk आ जाएगा. So in this way we can combine two or more string with the help of concat function. Next function, lower or L case. This function converts a string into the lower case. अगर हम कोई भी string capital letter में पास करेंगे, it will convert into the lower case letters. You can see select lower Mr. Obama as lower name 1, यानी कि जो भी आउटपुट आएगा उसके ऊपर जो कॉलम का नाम आएगा वो लोअर नेम 1 हो जाएगा, राइट? और you can see another example also. So you can see both the examples, Mr. Obama, Mr. Gandhi, they are converted into lowercase letter. We can also apply this function on the table also. Select lower ename. Ename is the name of table. एम्प्लॉय नेम एज लिखना ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो लिख सकते हैं चाहे ना लिख सकते. तो एम्प्लॉय नेम आउटपुट के ऊपर जो भी आएगा वो एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ आएगा फ्रॉम EMP. सेलेक्ट एल केस ई नेम एम्प्लॉय नेम फ्रॉम EMP.
This is the command. Okay, and you can see the output. All employee name letters are converted into the lowercase letters. Next function is substr यानी कि substring function. This function extracts a substring from a given string. यानी कि अगर हमें स्ट्रिंग से कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है तो हम उसके लिए substr यानी कि substring फंक्शन का यूज कर सकते हैं, राइट. For example, you can see display 4 characters extracted from the third left character onwards from a string A B C D E F G. तो देखिए क्या करना है आपको, सिलेक्ट सबस्ट्र फंक्शन का नाम है, फिर उसको आप उसके बाद आपको उस स्ट्रिंग को लिखना है जिसमें से आपको पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है, फिर स्टार्टिंग करेक्टर आपका कहाँ से होना चाहिए और कितने टोटल नंबर ऑफ करेक्टर उसके अंदर आएंगे. अगर आप लास्ट आर्गूमेंट नहीं देंगे तो ये लास्ट तक जाएगा, राइट. सब्स जो है वो उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, ये ऑप्शनल है, राइट. तो आप देखिए थर्ड करेक्टर ए बी सी डी, सी आपका थर्ड करेक्टर है, सी डी ई एफ आपके 4 करेक्टर्स के अंदर आ गए हैं. तो यू हैव टू पास 3 आर्गूमेंट इनसाइड इट. फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकेंड स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ द सब पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, and the total number of character. If you will not provide the last argument, it will take up to the last of the string, right. You can take another example. You can also take the argument in minus also. So whenever you have the minus argument, you have to count it from the reverse order, from the last -1, -2, -3, right. And in the same manner you will get the output. You can see one more example. Suppose you want to extract first 3 character, display first 3 character extracted from the jobs of the employee, whatever condition is given. तो job, 1, 3 means आपको फर्स्ट करेक्टर से स्टार्ट करना है और 3 करेक्टर उसके अंदर लेने हैं. दिस इज द कंडीशन. यू कैन सी दिस इज द आउटपुट. सो इन दिस वे we can extract the part of string with the help of substr function, right. Next function is upper oblique u case. This function converts the given string into the upper case. जैसे L case आपको lower case में convert करता था, ये आपको upper case में convert करेगा. जो भी argument आप देंगे उस argument को upper case में convert कर देगा. Suppose large आपने दिया in small letter, so it will convert into the capital letter or we can say upper case, right. Next function is trim function, L trim function. ये 3 तरह के फंक्शन होते हैं, एक ट्रिम, एक L trim, एक R trim. L trim क्या काम करता है, किसी भी स्ट्रिंग में अगर लेफ्ट साइड के अंदर कोई स्पेस छोड़ा हुआ है तो उसको वो ख़त्म कर देगा, डिलीट कर देगा. R trim राइट साइड में यानी कि स्ट्रिंग के राइट साइड में अगर कोई भी स्पेस आपने छोड़ा हुआ है तो उसको वो रिमूव कर देगा. ट्रिम का काम होता है दोनों तरफ का स्पेस रिमूव करना. तो ये फंक्शन 3 टाइप में यूज होता है, L trim, R trim और trim. So this function removes leading spaces or spaces from the left of given string. Okay. For example, you can see select L trim. अब देखिए RDBMS MySQL के स्टार्टिंग में कुछ 2-3 करेक्टर का स्पेस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. सो यू कैन सी इस फंक्शन ने जब इसका आउटपुट दिया तो इसका स्पेस जो है वो रिमूव कर दिया. नोटिस दैट L trim फंक्शन रिमूव्स ओनली द लीडिंग स्पेसिस. Spaces in the middle or the trailing spaces remains untouched, but R trim function removes the trailing spaces from the right of the given string as I told you. Okay. For example, you can see select R trim. अब आप देखिए इसके अंदर राइट साइड में RDBMS MySQL लेफ्ट में भी दिया हुआ है, राइट में भी दिया हुआ है, बट R trim फंक्शन जो है वो लेफ्ट का नहीं करेगा, केवल राइट का जो है स्पेस वो रिमूव कर देगा. थर्ड फंक्शन होता है आपका ट्रिम, जो कि लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों जो स्पेसिस हैं उसको रिमूव करेगा. सो दिस फंक्शन रिमूव्स लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसिस फ्रॉम ए गिवन स्ट्रिंग. इट परफॉर्म्स
combined operations or functions of the L trim and R trim, as I told you, right? So you can see this with an example. Suppose bar 1, तो इसमें जो दोनों साइड का स्पेस है वो रिमूव कर दिया है. यू कैन सी, अगर आप चाहते हैं कि इसी से लीडिंग स्पेस खत्म हो जाए, तो यू हैव टू राइट लीडिंग और ट्रेलिंग. राइट ए क्वेरी टू रिमूव लीडिंग स्पेसिस फ्रॉम द स्ट्रिंग bar 1. मेक यूज ऑफ ट्रिम फंक्शन ओनली. सो सेलेक्ट ट्रिम, आगे आपको लिखना पड़ेगा लीडिंग, ओके, फ्रॉम bar 1. So in this way you will write the function and you will get the output accordingly. You can see another example. Write a query to remove leading x characters from string xxxx bar or 1. This is the string. You can write any character. So trim leading, जो भी character आपको remove करना है, फिर from, और फिर आपको उस string का नाम लिखना है. This is the string given in the last. You can see in the command. ओके, तो देखिए जो भी x रिमूव हुआ है वो लीडिंग हुआ है, यानी कि आगे वाला हुआ है. आप देख सकते हैं bar 1 के बाद x x x x कितने सारे लिखे हुए हैं. सो ट्रेलिंग नहीं किया है, केवल लीडिंग किया है, राइट. सो अगर आपको बोथ साइड करना है तो आप बोथ लिखेंगे उसके अंदर. ट्रिम, राइट बोथ, देन विच करेक्टर यू वांट टू रिमूव फ्रॉम, देन स्ट्रिंग. ओके, तो ये दोनों तरफ का जो भी पर्टिकुलर करेक्टर है उसको रिमूव कर देगा. अब आपको अगर ट्रेलिंग करना है तो यू हैव टू राइट ट्रेलिंग इन प्लेस ऑफ द लीडिंग. इन द सेम वे यू विल गेट द आउटपुट, राइट. नेक्स्ट है इन str फंक्शन. दिस फंक्शन सर्चेस फॉर अ गिवन सेकेंड स्ट्रिंग इनटू द गिवन फर्स्ट स्ट्रिंग. यानी कि एक स्ट्रिंग के अंदर कोई दूसरा स्ट्रिंग सर्च करना है, वो कौन सी पोजीशन पे है ये आपको बताएगा ये वाला फंक्शन. सो स्ट्रिंग सर्च str1 फॉर str2 एंड रिटर्न द पोजीशन. फॉर एग्जांपल, डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ द अकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग or इन द स्ट्रिंग कॉर्पोरेट फ्लोर. कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है. तो सिलेक्ट इन str, पहले आपको वो स्ट्रिंग लिखना है जिसमें से आपको सर्च करना है, कॉमा, फिर आपको वो करेक्टर या स्ट्रिंग लिखना है जो आपको सर्च करना है. एज इंसर्टिंग आप कुछ भी दे सकते हैं. एज के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप अगर कोई भी नाम दो करेक्टर का लिखते हैं, यानी कि ऐसा कोई करेक्टर का नाम लिखते हैं या कोई ऐसा नाम लिखते हैं जिसमें स्पेस होता है बीच में, तो आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना कंपलसरी है. अगर आप कोई सिंगल एक ही नाम लिखते हैं जिसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है तो आप बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिख सकते हैं, राइट. You can understand it with an example. Display the position of string le in the field job of the table emp, right. So we'll write select job comma in str job comma le as le in job from emp. तो as के बाद देखिए आप इसके अंदर जो भी लिखा आपने le in job, इसमें दो स्पेस दिए हुए हैं, तो इट इज़ कंपल्सरी टू एनक्लोज इट इन अ डबल इन्वर्टेड कॉमा or single inverted comma, right. So you can see LE की जो भी पोजीशन उसके अंदर है वो सेकेंड करेक्टर है, थर्ड करेक्टर है, फर्स्ट अकरेंस बताएगा आपको जहाँ से भी उस करेक्टर की स्टार्टिंग होगी, तो इट विल सर्च द स्ट्रिंग पोजीशन. नेक्स्ट फंक्शन इज लेंथ फंक्शन. दिस फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग इन बाइट्स. कोई भी आर्गुमेंट जो आपने पास किया है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ करेक्टर कितने हैं वो आपको बताएगा. टोटल लेंथ कितनी है उसकी, कितने बाइट का वो करेक्टर है वो आपको बताएगा. यू कैन सी फॉर एग्जांपल हाउ मेनी करेक्टर्स आर देयर इन ए स्ट्रिंग कैंडिडेट. यू कैन राइट योर नेम आल्सो, एनी अदर आर्गुमेंट आल्सो. सो सिलेक्ट लेंथ और ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी स्ट्रिंग. तो देखिए 3, 3, 6 और 7 करेक्टर आर देयर इनसाइड दिस स्ट्रिंग. सो कोई भी आप आर्गुमेंट पास करेंगे उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ करेक्टर कितने हैं ये आपको शो करेगा. यू कैन सी वन मोर एग्जांपल. डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम्स एंड
name length for the employee 4 times 8 and 8900. This is the condition. Select ename comma length ename as name length. अब आप देखिए नेम लेंथ आपका 2 करेक्टर का नाम है, इनके बीच में स्पेस है तो इन्वर्टेड कॉमा कंपलसरी है. फ्रॉम EMP और वेयर कंडीशन आप लगाना चाहें लगा दें. सो यू कैन सी स्कॉट और जतिन 2 नाम हैं तो इसमें आप करेक्टर काउंट कर सकते हैं. देयर आर 5 करेक्टर ईच. सो you can find the total number of character in given string with the help of length function. Next है आपका left function. This function returns the leftmost number of character as specified. अगर आप चाहते हैं किसी string में से लेफ्ट साइड से उतने नंबर ऑफ करेक्टर आपको रिटर्न करेगा. पहले आपको उसके लिए स्ट्रिंग देना है, फिर आपको टोटल नंबर ऑफ करेक्टर कितने लेने हैं वो देना है. फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट लेफ्ट, या आपने एक स्ट्रिंग पास कर दिया USS/236709 वट एवर, कोई भी नाम दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन इंडिया वट एवर, कॉमा 3. तो अब ये क्या काम करेगा, लेफ्ट साइड से केवल 3 करेक्टर इसमें से पिकअप करेगा और आपको आउटपुट दे देगा. सो यू कैन सी USS. सिमिलरली राइट फंक्शन, दिस फंक्शन रिटर्न्स द राइट मोस्ट नंबर ऑफ करेक्टर्स एज स्पेसिफाइड. जैसे लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट से देता है, राइट फंक्शन राइट से उतने करेक्टर आपको रिटर्न कर देगा. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल. यू कैन सी द सेम एग्जाम्पल इज गिवन, जस्ट ओनली द डिफरेंस ऑफ राइट फंक्शन इन प्लेस ऑफ लेफ्ट. सो यू कैन सी. अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 2 ही करेक्टर शो कर रहा. अच्छा, क्योंकि आर्गुमेंट में हमने 2 ही पास किए हैं तो 2 करेक्टर रिटर्न किए हैं उसने, राइट. नेक्स्ट है मिड फंक्शन. ये फंक्शन आपका सबएस्टीआर की तरह ही काम करता है. मिड फंक्शन, बस फंक्शन का नाम चेंज है. दिस फंक्शन रिटर्न्स ए सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड पोजीशन. आप देख सकते हैं दोनों एग्जाम्पल देखिए. बोथ एग्जाम्पल्स आर गिवन विद द हेल्प ऑफ सब स्ट्रिंग आल्सो एंड मिड आल्सो. राइट. सो दोनों में आपका आउटपुट एक जैसा आएगा. या आप सब स्ट्रिंग सब एसटीआर यूज़ कीजिए या मिड फंक्शन यूज़ कीजिए. जैसे सब एसटीआर काम करता है, इन द सेम वे मिड फंक्शन इज ऑल्सो वर्क. Now let's discuss some numeric functions where you will pass the numeric arguments. This function returns the modulus. mod function आपको रिमाइंडर शो करता है. आपको रिमाइंडर चाहिए किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू का तो आप ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोड, और आप परसेंटेज ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं जैसा कि आप लैंग्वेजेस के अंदर करते हैं. n mod n, ये 3 तरीके से लिखा जा सकता है, राइट. फॉर एग्जांपल यू कैन सी सेलेक्ट मोड 11,4. जब आप 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 3 आएगा. ठीक है. नेक्स्ट फंक्शन है पावर. रेज टू पावर अगर आपको लेना है तो आपको POW या पावर के नाम से फंक्शन को यूज़ करना है. यू कैन सी यू वांट टू डिस्प्ले द 3 raised to power 2 वैल्यू. So we will write select power or POW 3,2 raised. So you can see 9 is the answer. Okay. राउंड फंक्शन. आपको पता कि हमारे पास जो वैल्यू होती हैं वो डेसिमल पॉइंट होते हैं, उसके अंदर कई बार 3, 4, 5 कई सारे डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं. और वी कैन से मैनी टाइम वी हैव सम वैल्यूज़ दैट हैव मैनी नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स. अगर हम उनको रिमूव करना चाहते हैं, उनको राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो राउंड फंक्शन आप उसके लिए यूज़ करेंगे. दिस फंक्शन रिटर्न्स ए नंबर राउंडेड ऑफ एज पर द गिवन स्पेसिफिकेशन. ओके. फॉर एग्जांपल सेलेक्ट राउंड 15.193,1. 1 का मतलब है यहाँ पर आपको एक नंबर ही रखना है. 15 पॉइंट के बाद आपको 1 वैल्यू चाहिए. तो एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको +1 में बताया था कि जितने नंबर आपके जा रहे हैं आप उनको देखिए. एक डिजिट अगर आपका जा रहा है तो उसके 5 से कंपेयर कीजिए. 2 डिजिट आपके जा रहे हैं तो उसको 50 से कंपेयर कीजिए. और 3 डिजिट जा रहे हैं तो 500 से कंपेयर कीजिए.
तो आगे वाली एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, नहीं तो एज इट इज रहेगी। तो अभी यहाँ पर देखिए आपको एक डेसिमल पॉइंट चाहिए, तो 93 2 वैल्यूज़ गई यहाँ की, तो 50 से कंपेयर करेंगे तो दैट इज़ ग्रेटर वैल्यू, तो 1 की जगह 15.1 की जगह 15.2 आना चाहिए। सो यू कैन सी द आउटपुट 15.2। अब ये 2 क्यों आया, क्योंकि हमारी दो वैल्यू इसमें से रिमूव हो रही हैं। एक वैल्यू रिमूव होती तो हम 19 एज इट इज आता, क्योंकि 3 वैल्यू जा रही थी उसमें से। अब यहाँ पर आपको 5 से कंपेयर करना था, अब 2 वैल्यू जा रही है, तो मैंने बताया आपको 50 से कंपेयर करना है। 50 से वैल्यू बड़ी है तो आगे वाला डिजिट जो है वो एक इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए 15.2 हो गया, राइट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, सेलेक्ट राउंड 15.193 -1। अब की बार जो आर्गूमेंट आपने पास किया है वो माइनस में दिया है। जब आप माइनस में आर्गूमेंट देते हैं तो आपको डेसिमल के लेफ्ट साइड में करना है, डेसिमल के राइट साइड से नहीं करना है, तो जो 15 वाली साइड है उसको करना है। अब आप देखिए 193 तो चला ही गया, अब क्योंकि आपने -1 दिया है तो आपका लेफ्ट मोस्ट डिजिट 5 है, तो ये चला जाएगा। तो मैंने बताया था कि एक डिजिट अगर जा रहा था आपको 5 से कंपेयर करना है, तो 5 से कंपेयर किया तो हमने 5 या 5 से बड़ी वैल्यू जब भी आपको मिलती तो आगे वाला डिजिट इंक्रीज हो जाएगा, तो 1 की जगह 2 आ जाएगा और उसकी जगह 0 आ जाएगा, राइट। तो इसकी वैल्यू 20 बन जाएगी, ठीक है। साइन फंक्शन, दिस फंक्शन रिटर्न साइन ऑफ ए गिवन नंबर। आप उसको कैसी वैल्यू पास करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 15 वैल्यू पास की तो ये आपको -1 की वैल्यू देगा। अगर आपको 15 पॉजिटिव पास किया तो ये आपको पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा। नेक्स्ट फंक्शन इज SQRT। स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है तो यू विल यूज SQRT फंक्शन, जैसे कि 100 का SQRT स्क्वायर रूट 10 होता है। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट SQRT 26 स्क्वायर रूट, आंसर में स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका, तो यू कैन सी द आउटपुट। अगर ये 25 होता तो ओनली 5 यू विल गेट। नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रंकेट। दिस फंक्शन रिटर्न्स अ नंबर विद सम डिजिट ट्रंकेटेड। राउंडेड ऑफ में राउंड ऑफ फंक्शन में क्या होता है, उसमें वैल्यू राउंड ऑफ होती है, लेकिन इसमें वैल्यू राउंड ऑफ नहीं होती है, उतने डिजिट नंबर ऑफ डिजिट जो है वो एंड हो जाते हैं और उसमें वैल्यू भी इंक्रीज नहीं होती है, राइट। तो ये देखिए 15.79, 1, इसका मतलब आपको एक डेसिमल वैल्यू रखनी है पॉइंट के बाद, तो 9 चला गया, 9 चला गया, लेकिन वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई, तो ट्रंकेट में वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। अगर यही माइनस में होता तो फिर आगे वाली वैल्यू होती। सिमिलरली यू कैन सी, देखिए राउंड फंक्शन के अंदर ये वैल्यू 20 हो गई थी, बट यहाँ पे 10 है, 1 एज इट इज रहेगा, 5 की चला गया इसमें से, उसकी वैल्यू उस वैल्यू की जगह 0 आ जाएगा और वैल्यू खाली ट्रंकेट होगी, राउंड ऑफ नहीं होगी इसके अंदर, ओके।